Good morning, students. Today we will be discussing about the effect of rotor resistance on torque slip relationship of the slip ring induction motor, and also we will discuss about the starting of your three-phase induction motor using DOL starter. Right, so let us begin. This is your slip ring induction motor. This is your three-phase supply given to stator, and your rotor is first of all star connected to the three slip rings, okay, with the help of brushes, okay, and then these three slip rings can be connected to starter or to the external resistance. All right, so keep in mind that your rotor of the slip ring induction motor can be connected to external resistances. Okay, so now what is the effect of rotor resistance upon the torque slip relationship of the slip ring induction motor? Okay, from the torque equation we know that torque is given by K into S into E20 square into R20 upon R20 square plus S square into X20 square. Okay, let us say this is your equation number 1. To see the effect of rotor resistance on the torque slip curve, consider a slip ring induction motor as we have drawn here. Okay, then in which additional resistance can be connected, it can be added through the slip rings. Okay, then it is already seen that the maximum value, we know that the maximum value of torque is given by this relationship, K into E20 square upon 2 times X20, then which is independent of the rotor resistance. Okay, क्योंकि हम अभी रोटर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. Your maximum torque is independent of the rotor resistance R2, but it is inversely proportional to rotor and standstill reactance. You can see from this equation. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रोटर की स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस के लिए, और आपका R2 इसके अंदर नहीं है. ऑलराइट, therefore the effect of rotor resistance will change only the value of slip. Therefore the effect of rotor resistance will only change the value of slip at which maximum torque occurs, because we know कि maximum torque की condition क्या थी हमारी, R20 was equal to S into X20, और यहाँ से अगर S निकालेंगे तो it will be R20 upon X20, राइट. तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपका जो वैल्यू है वो स्लिप का चेंज कर रहा है, ओनली R2 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से. ठीक है, रोटर सर्किट में. नाउ लार्जर द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, greater is the slip at which the maximum torque occurs. And now we will discuss in detail how the figure shows the torque slip curves for the various values of rotor resistances, keeping the rotor reactance X20 as constant. ठीक है, ये हमारा टॉर्क स्लिप कर्व होता है, ये हमें पता है. तो हमने यहाँ क्या किया, स्लिप को ले लिया 0.1 से लेके 1 तक. हमें पता है 0.1 to 1 हमारी जो स्लिप है वो वेरी करती है. देन टॉर्क को भी हमने इसी तरह से ले लिया 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 स्टैंड्स फॉर द मैक्सिमम टॉर्क, टी मैक्स, राइट. तो अब देखेंगे किस तरह से ये रिलेशनशिप हमें मिलेगा. बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है वो किस स्लिप के ऊपर आ रहा है, राइट. सो कंसिडर व्हेन R20 इज 0.1 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस. इनिशियल केस ले लेते हैं, सपोज R20 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.1 टाइम्स X20. तो मैक्सिमम टॉर्क किस स्लिप के ऊपर होगा, अगेन वी नो दैट द मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन. तो यहाँ से स्लिप की वैल्यू निकालिए, R20 अपॉन X20 हो जाएगा. तो R20 की वैल्यू अभी कितनी है, 0.1 टाइम्स दी X20. तो X20 कैंसल्ड आउट, इट विल बी 0.1, राइट.
तो अगर आपका 0.1 के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, ठीक है, स्लिप 0.1 के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, देन इट इज़ ड्यू टू व्हेन R20 इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स x20, ठीक है. Similarly, if the rotor resistance is further increased by adding some external resistance, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. तो न्यू वैल्यू सपोज R20 कितना हो गया, 0.2 टाइम्स x20 हो गया, तो न्यू स्लिप कितनी आ जाएगी आपकी, 0.2 आ जाएगी. सिमिलरली अगर 0.3 टाइम्स करेंगे तो 0.3, 0.4 टाइम्स तो 0.4, 0.6 टाइम्स तो 0.6 टाइम्स, और अगर 1 टाइम्स कर देंगे देन यू विल अचीव मैक्सिमम टॉर्क एट R20 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x20, ठीक है, या यू कैन से एट 1 स्लिप. ऑलराइट, सो इन दिस वे यू कैन डिराइव दिस ऑल दीज कर्व्स, ठीक है. ये R2 0.2 इंटू x20 के ऊपर है, मतलब स्लिप 0.2 के ऊपर मैक्सिमम रहेगा. R2 0.4 टाइम्स x20 है, मतलब स्लिप 0.4 के ऊपर मैक्सिमम रहेगा. और R2 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स x20 है, मतलब 0.6 के ऊपर स्लिप 0.6 के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क रहेगा. सिमिलरली R2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x20 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो टॉर्क है वो 1 स्लिप के ऊपर मैक्सिमम रहेगा. राइट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड at the start of the motor by adding that much resistance in the rotor circuit so that R20 is equal to x20 times, right. तो अगर हमें इनिशियली ही मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, R20 को x20 के बराबर करना पड़ेगा. तो हम मोटर के हमें स्टार्टिंग में ही जो टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि मोटर के स्टार्टिंग में आपका जो स्लिप का वैल्यू है वो कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है, बिकॉज रोटर स्पीड 0 रहती है. सो स्लिप का अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे NS माइनस एन आर अपॉन NS, सो NS माइनस NR आपका 0 है स्टार्टिंग में, तो इफेक्टिवली क्या आएगा, S इज इक्वल टू NS अपॉन NS, सो स्लिप विल बी 1, राइट. दैट मीन्स कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस की वैल्यू के इक्वल करनी पड़ेगी. ओके, तो अब इस सारी डिस्कशन से हमें क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. नंबर 1 इज द मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर remains constant because it does not depend upon the rotor resistance. This is quite evident from this equation, right, कि आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स वेरी विद द रोटर रेजिस्टेंस. क्वाइट राइट है, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम स्लिप की जो कंडीशन है वो कितनी होती है, मैक्सिमम टॉर्क की, R20 को इक्वल टू S इंटू x20. तो S की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x20 को हम स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है. तो वो इनवेरिएबली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, R20 के ऊपर. दैट मीन्स योर रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क. तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया. थर्ड पॉइंट इज द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन रोटर रेजिस्टेंस. तो इसमें आप इनिशियली जो टॉर्क की इक्वेशन है उसी को देखो, यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस. अगर बाकी सारी टर्म्स को हम कांस्टेंट कर लें, ठीक है, तो अगर हम लोग रोटर में रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो आप स्टार्टिंग टॉर्क को भी इंक्रीज़ कर सकते हो. और यही चीज़ यहाँ से भी पता चलती है कि जब आपका रोटर रेजिस्टेंस को हमने 1 टाइम्स x20 मतलब रोटर रिएक्टेंस के इक्वल कर दिया था, तो हमने बोला था कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है. तो रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के आप लोग मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क अचीव कर सकते हो, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज
The maximum torque can be obtained at start by making the value of rotor resistance equal to rotor reactance at standstill. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है. So this is all about your adding the rotor resistance in the slip ring induction motor, adding external rotor resistance in the slip ring induction motor. ठीक है. याद रखना कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में ही ऐड कर सकते हो, बिकॉज देयर इज स्लिप रिंग एंड ब्रशेस जिसके थ्रू आप लोग कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है. जबकि स्क्विरल केज आपका क्लोज्ड रोटर रहता है. स्क्विरल केज में आप लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. नाउ स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर यूजिंग द DOL स्टार्टर, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर. सबसे पहली बात, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे मोटर को, तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट है. तो यू हैव द 3 phases RYB, दीज आर द फ्यूजेस, ठीक है, these are the main contacts. This is your contactor coil A, this is auxiliary contact of the contactor coil A, this is your thermal overload relay, this is your motor, this is the contact E of the thermal overload relay. ये आपका ऑन पुश बटन है और ये आपका ऑफ पुश बटन है. ऑब्वियसली दिस इज योर NO टाइप पुश बटन एंड दिस इज योर NC टाइप पुश बटन, राइट. सो पहली बात कि जो आपका DOL स्टार्टर है वो अप टू 5 HP ऑफ इंडक्शन मोटर्स के ऊपर तक हम लोग DOL स्टार्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है. अब क्या होगा, इनिशियली जैसे ही आप 3 फेज AC इसके साथ कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, तो RYB इज़ कनेक्टेड टू द मेन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, लेकिन मेन कॉन्टैक्ट्स ओपन है. तो जैसे ही आप इस ऑन पुश बटन को प्रेस करोगे क्या होगा, दिस कॉन्टैक्टर कॉइल A विल गेट एनर्जाइज्ड थ्रू दिस ऑफ पुश बटन एंड देन ओवरलोड रिले कॉइल एंड A, कैपिटल A, ओके. और उससे क्या होगा, जो इसके ये स्मॉल a जो आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो भी एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है. और ये कॉन्टैक्ट को, ये प्लंजर को इस तरफ को खींचेगा, तो जिसकी वजह से आपके सारे के सारे मेन कॉन्टैक्ट्स भी क्लोज हो जाएंगे और रिले का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है. मेन कॉन्टैक्ट्स भी आपके क्लोज हो जाएंगे और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है. और जो मोटर है वो आपकी ओवरलोड रिले के थ्रू ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है. अब अगर आप इस NO पुश बटन को छोड़ भी देते हो, पुश बटन ऑन पुश बटन को छोड़ भी देते हो तो भी जो आपका मोटर है वो कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रहती है, बिकॉज जितने भी आपके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं वो अभी आपके क्लोज्ड है, ठीक है. और जो रिले का ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट स्मॉल a है ये भी आपका क्लोज्ड है, इसीलिए इसको होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, कि एक बार आपने इसको ऑन कर दिया तो ये होल्ड करके रखेगा, राइट. दिस इज़ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन. अब अगर आपने सपोज मोटर को ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो ऑफ पुश बटन है यू विल प्रेस इट, तो ये क्या करेगा, सर्किट को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, जिससे आपकी जो ऑक्सिलरी कॉइल है स्मॉल a वो डी एनर्जाइज हो जाएगी और ये अपने कॉन्टैक्ट्स को लूज़ कर देगी, ठीक है. और आपके मेन कॉन्टैक्ट्स भी ओपन हो जाएंगे, राइट. DOL मेथड ऑफ स्टार्टिंग of induction motor is applicable up to a rating of 5 HP. In this circuit, in addition to the fuses, thermal overload relay has been connected to protect the motor winding against the overload. ठीक है. When on push button is pressed, contactor coil A becomes energized and its open contacts are closed. The motor gets connected across the supply mains through the main contacts of the contactor. The motor continues to get supply even when the pressure on the on push button is released.
since the contactor coil will then get a supply through the contact A of the contactor, यही जो हमने अभी डिस्कस किया था. ओके, द कॉन्टैक्ट ए ऑफ द कॉन्टैक्टर ए इज देयरफॉर कॉल्ड, अभी बोला था इसको होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट बोल देते हैं. When the off push button is pressed, the coil gets de-energized and the main contacts of the contactor opens and the motor eventually stops working. In case of overload on the motor, the contact E, this contact E of the overload relay will open and subsequently the motor will stop. Fuses are provided for the short circuit protection. Alright, fuses हमेशा आपकी short circuit protection provide करते हैं. Okay, so hope this is clear to you. Good morning students. Today we will be discussing about the effect of rotor resistance on torque slip relationship of the slip ring induction motor. And also we will discuss about the starting of your three-phase induction motor using DOL starter. Right, so let us begin. This is your slip ring induction motor. This is your three-phase supply given to stator, and your rotor is first of all star connected to the three slip rings, okay, with the help of brushes. Okay, and then these three slip rings can be connected to starter or to the external resistance. Alright, so keep in mind that your rotor of the slip ring induction motor can be connected to external resistances. Okay, so now what is the effect of rotor resistance upon the torque slip relationship of the slip ring induction motor? Okay, from the torque equation we know that torque is given by K into S into E20 square into R20 upon R20 square plus S square into X20 square. Okay, let us say this is your equation number 1. To see the effect of rotor resistance on the torque slip curve, consider a slip ring induction motor as we have drawn here. Okay, then in which additional resistance can be connected, it can be added through the slip rings. Okay, then it is already seen that the maximum value, we know that the maximum value of torque is given by this relationship K into E20 square upon 2 times X20, then which is independent of the rotor resistance. Okay, क्योंकि हम अभी रोटर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो हम लोग रोटर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रोटर के ऊपर ही ध्यान देंगे. ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर ही ध्यान देंगे. सो rotor resistance independent, torque, maximum torque is independent of the, your maximum torque is independent of the rotor resistance R2, but it is inversely proportional to rotor and standstill reactance. You can see from this equation. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रोटर की स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस के लिए और आपका R2 इसके अंदर नहीं है. ऑलराइट, therefore the effect of rotor resistance will change only the value of slip. Therefore the effect of rotor resistance will only change the value of slip at which maximum torque occurs, because we know कि maximum torque की condition क्या थी हमारी, R20 was equal to S into X20, और यहाँ से अगर S निकालेंगे तो it will be R20 upon X20. राइट, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपका
जो वैल्यू है वो स्लिप का चेंज कर रहा है ओनली R2 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, ठीक है, रोटर सर्किट में। नाउ लार्जर द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, greater is the slip at which the maximum torque occurs. And now we will discuss in detail how the figure shows the torque slip curves for the various values of rotor resistances, keeping the rotor reactance x20 as constant, ठीक है। ये हमारा टॉर्क स्लिप कर्व होता है, ये हमें पता है। तो हमने यहाँ क्या किया, स्लिप को ले लिया 0.1 से लेके 1 तक, हमें पता है 0.1 to 1 हमारी जो स्लिप है वो वेरी करती है। देन टॉर्क को भी हमने इसी तरह से ले लिया 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 स्टैंड्स फॉर द मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स, राइट। तो अब देखेंगे किस तरह से ये रिलेशनशिप हमें मिलेगा। बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है वो किस स्लिप के ऊपर आ रहा है, राइट। सो कंसिडर व्हेन R20 इज 0.1 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस। इनिशियल केस ले लेते हैं, सपोज R20 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1 टाइम्स x20। तो मैक्सिमम टॉर्क किस स्लिप के ऊपर होगा, अगेन वी नो दैट द मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। तो यहाँ से स्लिप की वैल्यू निकालिए, R20 अपॉन x20 हो जाएगा। तो R20 की वैल्यू अभी कितनी है 0.1 टाइम्स दी x20। तो x20 कैंसल्ड आउट, इट विल बी 0.1, राइट। तो अगर आपका 0.1 के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, ठीक है, स्लिप 0.1 के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, देन इट इज़ ड्यू टू व्हेन R20 इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स x20, ठीक है। सिमिलरली इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय एडिंग सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यू वैल्यू सपोज R20 कितना हो गया 0.2 टाइम्स x20 हो गया। तो अब न्यू स्लिप कितनी आ जाएगी आपकी 0.2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर 0.3 टाइम्स करेंगे तो 0.3, 0.4 टाइम्स तो 0.4, 0.6 टाइम्स तो 0.6 टाइम्स, और अगर 1 टाइम्स कर देंगे देन यू विल अचीव मैक्सिमम टॉर्क एट R20 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x20, ठीक है, या यू कैन से एट 1 स्लिप, ऑलराइट। सो इन दिस वे यू कैन derive this all these कर्व्स, ठीक है। ये R2 0.2 इंटू x20 के ऊपर है, मतलब स्लिप 0.2 के ऊपर मैक्सिमम रहेगा। R2 0.4 टाइम्स x20 है, मतलब स्लिप 0.4 के ऊपर मैक्सिमम रहेगा। और R2 इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स x20 है, मतलब 0.6 के ऊपर स्लिप 0.6 के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क रहेगा। सिमिलरली R2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x20 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो टॉर्क है वो 1 स्लिप के ऊपर मैक्सिमम रहेगा, राइट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड at the start of the motor by adding that much resistance in the rotor circuit so that R20 is equal to x20 times, right। तो अगर हमें इनिशियली ही मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, R20 को x20 के बराबर करना पड़ेगा। तो हम मोटर के हमें स्टार्टिंग में ही जो टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि मोटर के स्टार्टिंग में आपका जो स्लिप का वैल्यू है वो कितना रहता है 1 रहता है, ठीक है, बिकॉज रोटर स्पीड 0 रहती है। सो स्लिप का अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे NS माइनस एन आर अपॉन NS, सो NS माइनस NR आपका 0 है स्टार्टिंग में, तो इफेक्टिवली क्या आएगा S इज इक्वल टू NS अपॉन NS, सो स्लिप विल बी 1, राइट। दैट मीन्स कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस की वैल्यू के इक्वल करनी पड़ेगी, ओके। तो अब इस सारी डिस्कशन से हमें क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। नंबर 1 इज द मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड by the motor remains constant because it does not depend upon the rotor resistance. This is quite evident from this equation, right, कि आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है that is independent of the rotor resistance,
ठीक है. So first point is clear. Second one is the value of the slip at which maximum torque occurs vary with the rotor resistance. Quite right है, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम स्लिप की जो कंडीशन है वो कितनी होती है, मैक्सिमम टॉर्क की, R20 को इक्वल टू एस इंटू X20. तो S की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, X20 को हम स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है. तो वो इनवेरिएबली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, R20 के ऊपर. दैट मीन्स योर रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क. तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया. थर्ड पॉइंट इज द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन रोटर रेजिस्टेंस. तो इसमें आप इनिशियली जो टॉर्क की इक्वेशन है उसी को देखो. यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो टॉर्क है दैट इज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस. अगर बाकी सारी टर्म्स को हम कॉन्स्टेंट कर लें, ठीक है, तो अगर हम लोग रोटर में रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो आप स्टार्टिंग टॉर्क को भी इंक्रीज़ कर सकते हो. और यही चीज़ यहाँ से भी पता चलती है कि जब आपका रोटर रेजिस्टेंस को हमने 1 टाइम्स X20 मतलब रोटर रिएक्टेंस के इक्वल कर दिया था, तो हमने बोला था कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है. तो रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के आप लोग मैक्सिमम टॉर्क अचीव कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क अचीव कर सकते हो, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड एट स्टार्ट बाय मेकिंग द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडिंग द रोटर रेजिस्टेंस इन द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एडिंग एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस इन द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है. याद रखना कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में ही ऐड कर सकते हो, बिकॉज देयर इज स्लिप रिंग एंड ब्रशेस जिसके थ्रू आप लोग कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है. जबकि स्क्विरल केज आपका क्लोज्ड रोटर रहता है. स्क्विरल केज में आप लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. नाउ स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर यूजिंग द DOL स्टार्टर, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर. सबसे पहली बात, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे मोटर को, तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, सिमेट्रिक अरेंजमेंट है. तो यू हैव द 3 phases RYB, दीज आर द फ्यूजेस, ठीक है, दीज आर द मेन कॉन्टैक्ट्स, दिस इज योर कॉन्टैक्टर coil A, this is auxiliary contact of the contactor coil A, this is your thermal overload relay, this is your motor, this is the contact E of the thermal overload relay. ये आपका ऑन पुश बटन है और ये आपका ऑफ पुश बटन है. ऑब्वियसली दिस इज योर NO टाइप पुश बटन एंड दिस इज योर NC टाइप पुश बटन, राइट. सो पहली बात कि जो आपका DOL स्टार्टर है वो अप टू 5 HP ऑफ इंडक्शन मोटर्स के ऊपर तक हम लोग DOL स्टार्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है. अब क्या होगा, इनिशियली जैसे ही आप 3 फेज AC इसके साथ कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, तो RYB इज़ कनेक्टेड टू द मेन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, लेकिन मेन कॉन्टैक्ट्स ओपन है. तो जैसे ही आप इस ऑन पुश बटन को प्रेस करोगे क्या होगा, दिस कॉन्टैक्टर coil A will get energized through this off push button and then overload relay coil and A, कैपिटल A, ओके. और उससे क्या होगा, जो इसके ये स्मॉल a जो आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो भी एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है. और ये कॉन्टैक्ट को, ये प्लंजर को इस तरफ को खींचेगा, तो जिसकी वजह से आपके सारे के सारे मेन कॉन्टैक्ट्स भी क्लोज हो जाएंगे और रिले का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है. मेन कॉन्टैक्ट्स भी आपके क्लोज हो जाएंगे और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है. और जो मोटर है वो आपकी ओवरलोड रिले के थ्रू ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है. अब अगर आप इस NO पुश बटन को छोड़ भी देते हो, पुश बटन ऑन पुश बटन को छोड़ भी देते हो, तो भी जो आपका मोटर है वो कंटिन्यूसली
ऑपरेशन में रहती है, बिकॉज जितने भी आपके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं वो अभी आपके क्लोज्ड है, ठीक है। और जो रिले का ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट स्मॉल ए है ये भी आपका क्लोज्ड है, इसीलिए इसको होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। कि एक बार आपने इसको ऑन कर दिया तो ये होल्ड करके रखेगा, राइट। दिस इज़ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। अब अगर आपने सपोज मोटर को ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो ऑफ पुश बटन है यू विल प्रेस इट, तो ये क्या करेगा, सर्किट को ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, जिससे आपकी जो ऑक्सिलरी कॉइल है स्मॉल ए वो डी एनर्जाइज हो जाएगी और ये अपने कॉन्टैक्ट्स को लूज़ कर देगी, ठीक है। और आपके मेन कॉन्टैक्ट्स भी ओपन हो जाएंगे, राइट। और ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये कब काम करेगा, जब आपका ठीक है। Now DOL's method of starting of induction motor is applicable up to a rating of 5 HP. In this circuit, in addition to the fuses, thermal overload relay has been connected to protect the motor winding against the overload. ठीक है। When on push button is pressed, contactor coil A becomes energized and its open contacts are closed. The motor gets connected across the supply mains through the main contacts of the contactor. The motor continues to get supply even when the pressure on the on push button is released, since the contactor coil will then get a supply through the contact A of the contactor. यही जो हमने अभी डिस्कस किया था, ओके। द कॉन्टैक्ट ए ऑफ द कॉन्टैक्टर ए इज देयरफॉर कॉल्ड, अभी बोला था इसको होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट बोल देते हैं। When the off push button is pressed, the coil gets de-energized and the main contacts of the contactor opens and the motor eventually stops working. In case of overload on the motor, the contact E, this contact E of the overload relay will open and subsequently the motor will stop. Fuses are provided for the short circuit protection, alright। फ्यूजेस हमेशा आपकी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो होप दिस इज क्लियर टू यू।